Namaste friends, let us discuss polarization by scattering. This is from the chapter Wave Optics. First of all, you should know scattering of light. In the previous standard you studied about scattering of light. Now let us revise what actually is the scattering of light. Now suppose this is the light beam from the sun. So this is the sunlight, that means white light. When this sunlight enters the atmosphere consists of different gases. Part of this light energy is absorbed by different atoms and molecules of that atmospheric gases. मान लो इस एटम ने थोड़ी सी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, then those atoms which absorb the light energy they become unstable because by absorbing light energy electron jumps from their lower orbit to higher orbit. So due to jumping of electron, due to excitation of electron from lower orbit to higher orbit, atoms become unstable. In order to acquire stability, they re-emit the energy. They re-emit the light energy but in different direction. तो re-emission absorption हो रहा है but re-emission is in different direction. Therefore, forward intensity of the light is getting reduced. तो forward carry करने वाली जो उसकी intensity वो कम हो रही. So throughout when it is traveling through the atmosphere, atmospheric gases absorb the part of the light energy and re-emitted in different direction. So this is the scattering. That means phenomenon of deflection of light from its original path. Phenomenon of deflection of light from its original path due to the particles having size of the order of वेवलेंथ. लैम्बडा मतलब वेवलेंथ. तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो अलग अलग गैसेस के एटम्स मॉलिक्यूल्स है इनकी साइज वेवलेंथ के ऑर्डर में. तो दैट पार्टिकल स्कैटर द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डिफ्लेक्ट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो दैट इज द स्कैटरिंग. तो एक्चुअली होता क्या, एब्सॉर्प्शन होता है, पार्ट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब होता है और री एमिशन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है. इसलिए फॉरवर्ड कैरिंग जो लाइट की इंटेंसिटी वो रिड्यूस होती जाती है. ये स्कैटरिंग है. तो डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, द फिनोमेनन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ड्यू टू द पार्टिकल्स हैविंग साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स. ओके, सो दैट इज द स्कैटरिंग. नाउ फ्रॉम दैट स्कैटरिंग अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. You know polarization can take place by reflection. Also polarization can take place by scattering. तो scattering से polarization किस तरह से होता है, let us understand that. So first of all we should know size of the scattering particle should be of the order of wavelength. Scattering particle जो है उनकी साइज wavelength के ऑर्डर में होनी चाहिए. ठीक है. Now suppose these are the three coordinate axes. ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है. मान लेते ये है इधर, जिसे y एक्सिस ले लेते, ये x एक्सिस x और ये ऊपर का z एक्सिस. ठीक है. एट द z एक्सिस सपोज देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, white source of light. So that white source of light is going to emit ordinary light, means unpolarized light. So that unpolarized light is having vibrations in all possible planes. ऐसे multiple vibrations की direction. Now let us resolve that multiple vibrations, ये जो अलग अलग डायरेक्शन से वाइब्रेशन के, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन मतलब लाइट का वाइब्रेशन. Let us resolve them into two parts.
उनको दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, दो परपेंडिकुलर, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को दो परपेंडिकुलर पार्ट कौन से हो सकते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो दिस वाइब्रेशन इज अलोंग वाई एक्सिस, दिस वन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ये बन गए दोनों। एक्चुअली मल्टीपल वाइब्रेशंस की डायरेक्शन वी कैन स्प्लिट देम इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में आ गए। तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ सपोज दिस इज द स्कैटरिंग पार्टिकल, ये स्कैटरिंग पार्टिकल, ये स्कैटरिंग पार्टिकल है, इसे स्कैटरर भी बोल सकते हैं, स्कैटरर पार्टिकल। ओके, तो ये कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है स्कैटरर पार्टिकल के लिए, यहाँ पे एरो दिखाया मैंने, ये है स्कैटरर पार्टिकल। ठीक है, नाउ दिस पार्टिकल स्कैटर द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करने वाला। नाउ लेट अस रिसीव द वेव अलोंग दिस, इसके अलोंग आने वाला लाइट रिसीव करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। अब वाई एक्सिस के अलोंग लाइट रिसीव करना है, यू नो वेरी वेल वाइब्रेशंस ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वी आर गोइंग टू रिसीव द लाइट अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ये बन गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब इससे वाइब्रेशन क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अब इन दोनों में इसे परपेंडिकुलर कौन आने वाला है, आप बोलेंगे जेड भी आ सकता है, लेकिन जेड के अलोंग वाइब्रेशन नहीं, जेड इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम स्टार्ट हो रहा है सोर्स से। ठीक है, तो वाइब्रेशन पे उनका इफेक्ट दो पार्ट्स में लिए हमने अनपोलराइज्ड लाइट का, अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का अलोंग है, ये अलोंग वाई एक्सिस, तो बराबर वाई एक्सिस पे पैरेलल लगना चाहिए। ये अलोंग वाई एक्सिस, तो y एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन सा हो सकता है, x एक्सिस है y को परपेंडिकुलर। आप बोलेंगे z भी है, लेकिन z के अलोंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, अलोंग दैट z देयर इज नो वाइब्रेशन। ठीक है, तो y एक्सिस को परपेंडिकुलर है x, तो x के अलोंग कौन सा वाइब्रेशन है, ये वाले, तो ये आने वाला है फिर अलोंग y एक्सिस। ठीक है, so these are the vibrations traveling along y-axis but perpendicular to y-axis, ये y-axis को perpendicular है because ये along parallel to x है, और x-axis y को क्या होता है, perpendicular। so we can observe along the y-axis, यहाँ से हम observe कर सकते हैं। ठीक है, तो we receive the plane polarized light। When we look along the x-axis, यहाँ से हम देखते हैं, तो x-axis ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बन गई, जो स्कैटरिंग वाला लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अब आ गई x-axis को पैरेलल, लेकिन वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर प्रोपेगेशन को, बिकॉज वेव्स आर ट्रांसवर्स, लाइट वेव्स ट्रांसवर्स है, तो इसे परपेंडिकुलर कौन है, फिर आप बोलेंगे इसे परपेंडिकुलर जेड है, लेकिन जेड के अलावा वाइब्रेशन नहीं, तो बचा कौन फिर वाई, तो इसे परपेंडिकुलर वाई, तो ये वाई एक्सिस के अलावा वाइब्रेशन रिसीव करेगा। सो दिस एक्स एक्सिस इज गोइंग टू रिसीव वाइब्रेशंस अलोंग वाई एक्सिस। तो चार दिखाए, तो इधर भी चार दिखाए। ठीक है, so these vibrations parallel to y axis but perpendicular to x axis, ये सब ऐसे राइट एंगल है। ठीक है, ये दोनों z एक्सिस को राइट एंगल है, देखो ये भी z एक्सिस को राइट एंगल है। This unpolarized light is having scattering by the scatterer molecule in different direction, but we are receiving the light परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट को हम परपेंडिकुलर रिसीव कर रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिसीव कर सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस रिसीव कर सकते हैं। ये ह्यूमन आई नहीं लगता तो भी इसे समझ देना है कि आई। ठीक है, तो अलॉन्ग वाई एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिसीव करते हैं
तो उस एक्सिस को डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और वाई एक्सिस को अपने आप में परपेंडिकुलर कौन हो सकता है, एक्स। इसलिए वाइब्रेशंस पैरेलल टू एक्स कौन रिसीव कर रहा है, वाई। मतलब द ऑब्जर्वर विच इज लुकिंग अलोंग वाई एक्सिस, द ऑब्जर्वर विच इज लुकिंग अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर दैट ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन वो कौन से हो सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकते हैं। तो दिस टू scattered in perpendicular direction with separate plane polarized light by the scattering particle. ये scattering particle उसे scatter particle बोल सकते हैं। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। When an unpolarized light beam of white light is allowed to incident on the medium containing the particles having size of the order of wavelength of light waves, then लाइट इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन। तो किसी एक मीडियम के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन उस मीडियम के पार्टिकल्स इनकी साइज वेवलेंथ के ऑर्डर में यदि है तो लाइट इज स्कैटरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये लिखा है। व्हेन अ स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, अब यहाँ से स्कैटर हो रहा है, स्कैटर बीम ऑफ लाइट इज सीन अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। देखो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन, इसे परपेंडिकुलर ये दो पॉसिबल डायरेक्शन कौन कौन से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बिकॉज इंसिडेंस कौन से एक्सिस को पैरेलल है, जेड एक्सिस, तो उसे परपेंडिकुलर दो ही बन रहे, एक वाई दूसरा क्या एक्स। तो परपेंडिकुलर के अलोंग देखते हम तो क्या आगे क्या लिखा है, देन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम इज रिसीव। तो कौन सा रिसीव कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड। उसका रीजन दिया है, बिकॉज vibrations of light must be perpendicular to direction of propagation। अब ये बन गए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इससे वाइब्रेशन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आप बोलेंगे फिर ऐसे डाल दो ना, नहीं, क्योंकि ये अलॉन्ग जेड नहीं कंसिडर कर सकते, वो तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट भी। तो फिर वाई एक्सिस को दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा बचा है, एक्स। तो एक्स को पैरेलल जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन एक्स को पैरेलल है। देखो एक्स हॉरिजॉन्टल है, ये भी ऐसे, तो दैट आर रिसीव्ड बाय दिस। लेकिन हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं, तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन है, वाई। तो वाई के अलोंग जो वाइब्रेशन है इसे, दैट आर रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर लुकिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ये दोनों भी कौन से, फिर प्लेन पोलराइज्ड। दिस टू आर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कौन से, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम, ये दोनों, ये सेपरेट ये सेपरेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम, ये और ये। अब इसका और डिस्क्रिप्शन क्या लिख सकते हैं, फिगर को रफ करके या फिर आगे का रफ करके। तो आगे क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम, फ्रॉम फिगर अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट अलोंग z-axis on the scattering particle, allowed to incident along z-axis on the scattering particle, then beam is scattered। तब ये beam scatter होने वाला है। If the scatter light is seen along y-axis, along y-axis हम देख रहे हैं उसे, then the plane polarized light with vibrations parallel to x-axis are received। Plane polarized light with vibrations parallel to x-axis is received because vibrations of light should be perpendicular to direction of propagation। तो इस एक्सिस के अलावा कौन से वाइब्रेशन आने वाले, जो उसे परपेंडिकुलर, क्योंकि ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होते हैं लाइट के, मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को कौन है, एक्स है। तो एक्स को पैरेलल जो वाइब्रेशन है ये वो रिसीव करेगा। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट, सिर्फ वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस डाल दो और एक्स की जगह वाई डाल दो, मतलब ये इस तरह से। इफ स्कैटर्ड लाइट इज सीन अलोंग एक्स एक्सिस, देन वाइब्रेशंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन लाइट हैविंग वाइब्रेशंस पैरेलल टू वाई एक्सिस इज रिसीव्ड बिकॉज वाइब्रेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। लास्ट में लिख देना, इन दिस वे plane polarized light can be obtained by the phenomenon of scattering of light। Okay, so this is about scattering of light, sorry, this is about
पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, बस इतना ही लिखना।